हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वेरी लवली शो। अगर आप फूडी हैं मेरी तरह और आप खाना बनाना नहीं जानते, और अगर आप खाना बनाना जानते हैं तो उसे प्रेजेंट करना नहीं जानते, सो इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेकर आ रहे हैं हमारे आज के मेहमान, हु हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 years एंड ही हैज़ वर्कड across many fine dining establishments, not only in India but in abroad. So let's welcome Chef Nishant. Yes, sir. Please come. Yes, sir. Please join. Hello. Hi, how are you? How are you? Very well, very well. Good to see you. Welcome to the very lovely show. Thank you, Same here. It's It's a it's pleasure. it's really great to have you here. Thank you. My pleasure indeed. अच्छा सर, जैसे कि आज का सफर डेफिनेटली हमारा चटपटा और कुछ मजेदार होने वाला है बिकॉज यू आर हेयर। सो सर, सबसे पहले नॉर्मली हमारे यहाँ होता है ना, लाइक बॉयज या मेन किचन में नॉर्मली कम ही जाते हैं, Right. एंड अगर बात की जाए उसको एज ए प्रोफेशनल करियर लेने की, तो बहुत कम लोग उसको लेते हैं। सो हाउ Right. यू गेट स्टार्टेड इनटू दिस industry? So I tell you very, very frankly, I never wanted to be chef. Okay, it all Okay. happened by default. Okay, because Okay. I just could not get through my मतलब मेरे पहले अटेम्प्ट में जब मैंने 12th पास किया, फिर मैंने इंजीनियरिंग के एग्जाम दिया, so I could not get through in my first attempt. और मैं हमेशा ये चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें कोई और कुछ न, कोई और उसमें बहुत अच्छा ना, मतलब काइंड ऑफ I wanted to make my own name, in whatever I do. It was an open playground for me. मतलब nothing in frame of mind, because the place from where I come from, we all talk about only engineer or doctor or IAS, or IPS. So we never talk. Nobody talks about chef. Chef is completely Right. a different kind of thing which no one bothers to. So so then I look at TV, and I used to watch Chef Sanjeev Kapoor, and used to see him eating so many good, amazing food, that too without paying anything. So I thought, कि Right. मैं भी एक बार chance लेके देखता हूँ कि if it works. So, I just gave my exam, and it was quite easy because anyways I was preparing for engineering exam. So the questions were quite simple. So I got through, and then मेरा IHM पूसा में इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद फिर IHM भोपाल केटरिंग कॉलेज मिला. देयर ऑल्सो आई वाज नॉट वेरी श्योर कि मेरा क्या करना है, मतलब मेरे करियर का शेप अप कैसे होगा. माय पेरेंट्स वेर वेरी वेरी काइंड ऑफ दे वर नॉट very happy of me going to different career, choosing a different career. क्या करने जा रहा है, they completely told me either this way or a highway. There's no third option in your life, so be very sensible when you take this. But yes, I took this hard decision. It is almost around 25 years back. Okay. I think that time it was not what it is today. There was no master chef, there was no master chef Australia, there was no glamorous opportunity that one can look up to. But yes, I choose that path, and I happened to get IHM Bhopal as my catering college. And again, with that fear of speaking, in front of the guests, I choose to take up kitchen. The kitchen was always a hidden place where ज्यादा आपको खाना बना के आप सेट कर दो, बस उसके बाद you are not much bothered about it. So so I took kitchen, but yes, I mean, so far so good. I'm quite content in what I have done in my life, and I'm quite happy that I'm learning and I'm sharing. I'm also giving a lot of opportunities for young brigades, and working as a team, doing some successful concepts, some collaboration, endorsement. There are a lot of things which are coming back. So very, very happy. That's really great. So कहते हैं ना कि एक and as well, तो everything is Correct. everything is Absolutely. yeah. Yes. And you were very right, because that time opportunities of doctors, engineers, parents look forward के हमारा बच्चा engineer बने, doctor बने, chef, Correct. बहुत कम लोग शेफ बनते हैं. that's बिल्कुल बहुत कम लोग शेफ बनते हैं. तो सर, आपने फिर उसके लिए प्रॉपर एक ट्रेनिंग
you have gone through. Right, absolutely. So I took 3 years of college was a training again, and then you get to आपको करीबन 6 months का ट्रेनिंग इंडस्ट्री में मिलता है, जो मुझे मुगल शेल्टन आगरा से मिला। और उसके बाद फिर मैं 3 साल कॉलेज में पढ़ाई किया। उसके बाद फिर माय फर्स्ट जॉब वाज विद राजविलास होटल, और जो ओबरॉय होटल Okay. और ओबरॉय होटल का पार्ट है। देन आई गॉट ट्राइडेंट ऑल्सो, ट्राइडेंट जयपुर। तो वहां पर करीबन मैंने 2-2.5 साल काम किया एज अ वेरी वेरी जूनियर शेफ। I only used to watch, what I do today. I used to watch my chefs, doing all the orders. मैं किचन मॉप करता था बेसिकली, और मैं कटिंग चॉपिंग, जो प्याज छीलने वाली जो बात होती है हमेशा की, आपको शुरुआत से प्याज छीलने पड़ते हैं और रोना पड़ता है। So we also go through that hardship, which is quite important. अगर आप कोई भी करियर चूज करें तो ये बहुत important कि थोड़ा हार्डशिप आना चाहिए लाइफ में। Then you understand the misery, and then you understand कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कितना मुश्किल है कुछ बनना। और जब इन परिस्थितियों के साथ जो आगे बनता है वो बहुत स्ट्रांग भी होता है अपने डिटर्मिनेशन में। So then I worked with Rajulas for good 2.5 years. उसके बाद फिर every chef has a dream or every person has a dream to move outside it, to go outside India, at least to explore. तो मुझे भी दुबई का अपॉर्चुनिटी मिला। फिर मैं मदीना जुमेरा जो होटल है उसके प्री ओपनिंग टीम में गया, वहाँ दुबई काम किया मैंने, कुछ रेप्यूटेड रेस्टोरेंट्स। वहां पर मुझे असली समझ में आया कि क्या होता है काम करना। ओके, बिकॉज आई हैड एन अमेरिकन शेफ, आई हैड ए स्पेनिश शेफ, आई वर्क विद एन इटालियन शेफ। तो बहुत कोर वर्क सीखने को मिला। इन बिटवीन मेरे को क़यामत किचन जो इंडियन है वहां भी सीखने को मिला। तो मैंने ये सोचा कि यार इंडियन सबसे अच्छा है, बिकॉज मैं खुद एक इंडियन हूँ, और मुझसे जब वो बिरयानी की बात करते थे या रोगन जोश की बात करते थे या पालक पनीर या बटर चिकन या दाल मखनी, तो वो हमारे से कनेक्ट होता है वो चीजें। तो वहीं से मुझे लग रहा था कि मुझे शायद इंडियन में ही कुछ करना चाहिए, ताकि एक रिकग्निशन भी मिलता है। तो फिर मैं वहां से मेरा थोड़ा इंडियन फूड के प्रति ज्यादा इंक्लिनेशन हुआ। उसके बाद फिर मैं इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद फिर मैं ऑलिव रेस्टोरेंट जो है दिल्ली में, उनके साथ करीबन 4 साल काम किया, और वहां पर मैंने इटालियन मेडिटेरेनियन फूड सीखा। अगेन यू शुड नॉट स्टॉप लर्निंग। जैसे आपकी लर्निंग आती है आप लर्न करो जरूर लाइफ में। कोई भी लर्निंग को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, एनी काइंड ऑफ challenges, you should always take it up as something which is very very amazing. उसके बाद ऑलिव के बाद फिर मुझे रोजिएट होटल्स में काम करने का मौका मिला, जहाँ इनके और करीबन 6 होटल्स हो गए ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो वहां पर मैंने 3 होटल ओपन किया, और उसके बाद कोरोना हिट एवरीवन। सो एंड आई थॉट दैट लेट्स नॉट वर्क अंडर एनीवन। उसके बाद फिर मैं थोड़ा एंटरप्रेन्योर वाला इंस्पिरेशन लेके अभी तक चल रहा हूँ कि मैं आई एम जस्ट डूइंग थिंग्स ऑन माय ओन। आई हैव रिसेंटली लॉन्च्ड माय कंपनी आल्सो. So I'm doing consulting. Then I have my own time for my family, for my friends, for everyone. So this is how it is. So far so good. And every day with after Corona के बाद अभी इंडस्ट्री बहुत खुल चुका है. There are immense number of opportunities if you have right attitude. I think right attitude is the key. When whoever is watching, please ensure that you keep positive attitude. Okay. Whichever industry you take, you should always be positive. You should always you should always be ready to take up hardship in your life, and that's how it should be. And then when you find that success, that's very nice. So yeah, so I'm doing different consultations in India and abroad, और कुछ बड़ी exciting चीजें हो रही है लाइफ में. So as we talk, I'll take you through. Right. So you have done so much of work, so much of experience, and now your own your own business. Yes. So sir, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, I love Indian cuisine, right? So ये होता है Indian cuisine. अब Indian cuisine को अगर हम देखें तो North East is also in India. If you see, कहीं पे सांबर वड़ा है, कहीं पे दाबेली है, कहीं पे so बहुत सारी चीजें हैं because India is diversified. Correct. बहुत सारी चाहे रीजनल वे में कहीं. So what is your definition of Indian cuisine? It's very very difficult. Good question actually. India आप एक लाइफ में इंडिया देख ही नहीं सकते, इंडिया सीख नहीं सकते. ओके, because नॉर्थ ईस्ट और मुंबई में कोई सिमिलरिटी नहीं है, बिल्कुल खाना अलग अलग है. आप हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कुजीन देख लो या पंजाब देख लो,
और आप साउथ चले जाओ, एकदम अलग है। यू नो राइट। इसके वजह से क्या है कि अगर आपने आपने इंडियन खाना लिया, इंडियन फूड सीखने का सोचा, तो जब आप इंडिया में हो तब तो ठीक है कि ठीक है, आपको लोग समझते हैं कि आप उधर से आते हो तो आप इधर नहीं समझ सकते, या आप इधर से हो जी, साउथ के हो तो आप नॉर्थ। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप इंडिया से बाहर जाते हो, वहां पर आपको करेक्ट। एज एन इंडियन शेफ जब लिया जाता है तो आपको तंदूरी चिकन से लेके गुलाब जामुन तक, यू नो जी, you have to make idli also and you have to make dessert also, Indian dessert also। तो वो आपको पूरी तरह से आनी चाहिए, आपको एज ए सिंबॉलिक लिया जाता है कि आप सब कुछ समझते हो। बट जी, अब अगर आप विदेशी क्विजीन को देखो, फॉरेन क्विजीन, वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर एक तरह का खाना होता है, ज्यादा सिमिलरिटी होता है, बहुत डिफरेंस नहीं होता, अलग बिल्कुल अलग जी, नहीं होता। बट इट इज अगेन वेरी एक्साइटिंग फॉर ए शेफ, इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग टू एक्सप्लोर। तभी राइट। मैंने इस इंडियन चूज किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आई ऑलवेज बिलीव सीइंग इज बिलीविंग। जितना आप देखोगे उतना विश्वास करोगे। और मैं बहुत ट्रैवल, आई इन्वेस्ट इन ट्रैवलिंग, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ ट्रैवल करने में। जी, और मैं डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया आई गो एंड आई लर्न फ्रॉम पीपल, और उसके बाद फिर मैं उसको इम्प्रोवाइज करता हूँ अपने अपने तरीके से। बिकॉज आई डोंट वांट टू कॉपी पेस्ट, बट आई वांट टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज lovely joints in India who are doing so good food। okay, इतना राइट। ट्रिक्स है, इतना टेक्निक्स है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निक सीखना। अगर आपने टेक्निक सीख लिया तो आप चीजों को अपने अनुसार ढाल सकते हो। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एनीवन हु वांट्स टू बिकम शेफ, प्लीज डू ट्रैवल, प्लीज डू इन्वेस्ट इन ट्रैवलिंग, प्लीज डू वॉच राइट। स्टफ। बिकॉज तब आपको, अगर आपने एस्पैरेगस की बात की, अगर आपने एस्पैरेगस को टच करोगे, देखोगे सामने, तब आपको ज्यादा विश्वास होगा कि आप क्या उसके साथ कर सकते हो। एंड इंडिया में भरपूर इंग्रेडिएंट्स है। तभी मैं ज्यादा वेजिटेरियन की ओर मेरा ज्यादा झुकाव ही है, बिकॉज वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स आर अनलिमिटेड। वेजिटेरियन में राइट। इंग्रेडिएंट्स खत्म नहीं होते। नॉन वेज में हमारे देश में देयर ओनली 3 or 4 मीट जो आप बना सकते हैं, जो लोग खाते हैं जनरली, अदरवाइज कुछ चीजें नहीं खाते। तो इसीलिए आप वेजिटेरियन मैं ज्यादा करता हूँ, बिकॉज मुझे ज्यादा इंग्रेडिएंट देखने को मिलता है। हर एक सीजन में एक नया इंग्रेडिएंट आ जाता है। सो फॉर समवन हु इज एक्सप्लोरिंग एंड समवन हु वांट्स टू पुट अप एक्साइटिंग मेन्यू टू द कस्टमर्स, it is very important for us to look around and to get inspired and to beautify your plate according to this। अगेन एक और मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा। मेरे लाइफ में डॉक्टर पुष्पेश पंत जी आए, जो मेरे गुरु है, जो जी, JNU में बहुत सालों ने पढ़ाया। वो हिस्टोरियन है, फूड हिस्टोरियन है। अब वो जब मेरी लाइफ में आए तो उन्होंने मुझे काफी सारा इन्फॉर्मेशन दिया इंडियन फूड के बारे में। वो जी, इंसाइक्लोपीडिया है इंडियन फूड के। what was past, what is present and what is going to be future। ओके। ये लोग इस तरह के लोग, ये लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो था और क्या हुआ था। तो अगर आपने कुछ जानना है कि क्या था इंडिया, अगर 5000 साल हमारी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उस टाइम क्या लोग खाते थे और हम आज क्या खाते हैं, क्या विभिन्नताएं आए, क्या चेंजेस आए, गुड हुए, गुड चेंजेस, बैड चेंजेस, और उसको मैं अपनी तरफ से कैसे उसको खाने की तरफ से ढाल सकता हूँ। तो डॉक्टर पंत ने मुझे बहुत अच्छी तरह से चीजों का ज्ञान दिया है। एंड आई एम वेरी वेरी जी, thankful to him that he keeps guiding me, he keeps telling me that this is right and this is not right, and he keeps giving me books are an integral part of our life, anyone's life। we should always look up to go back to our books and study them। एक कृष्णा अरोड़ा करके हमारे कॉलेज में दिया जाता था। मैं जब भी उसको जी, जी। दोबारा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उसमें हमेशा एक नया लाइन मुझे दिखता है। So it is so good। Then in fact I was just reading Ranjit Singh's Indian Cookery। अभी 2 दिन पहले मैंने पढ़ना शुरू किया है। तो वहां पर जी, जी, आपको सारी बेसिक चीजें बड़ी अच्छी तरह से समझाई हुई है। तो आप बुक्स पढ़े, आप टीवी में जो अच्छी रेसिपीज दिखाते हैं वो चेक करें, आप ट्रैवल करें, आप हिस्टोरियंस या जो नॉलेजेबल लोग उनसे मिले। आई थिंक दिस इज हाउ वन कैन शेप करियर एंड बी हैप्पी टू व्हाट दे आर डूइंग। राइट। जैसे कि आपने अभी उनके बारे में बताया, तो आपने देखा होगा आसपास के लोग भी हमारे आजकल ना, they are watching their weight very closely, Yeah, and they are they are into idea of being thin, yeah, और या ये कह लीजिए post COVID, right, they realize that we can't dismiss our correct, health। correct, सो और इसी वजह से शायद कुछ फूड कल्चर भी चेंज हो correct, रहा है, यू नो
So what is your say on that? I think health is the most important thing. I mean, we all, अगर आप कोविड को भी किसी तरह से कनेक्ट करो तो कहीं ना कहीं तो हेल्थ से ही कनेक्टेड है, राइट? हमने कुछ ना कुछ तो गलती Right. किया है. I think because of that reason, COVID hit us, and our immunity, we were not that immune to, uh, to fight against this fiasco which happened. इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छा खाना. अगर हम फिर अगर मैं पास्ट की बात करूंगा तो वहाँ पर हम लोग जो खाना खाते थे, पास्ट इज प्रेजेंट नाउ, ये हमारे यहाँ आज की ट्रेंड्स बोल रहे हैं. क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज हमने वो खाना खाना छोड़ दिया. हम थोड़े Right. कोल्ड स्टोरेज पे ज्यादा डिपेंड करने लगे. हम कच्ची हल्दी खाना भूल गए. we don't eat according to season. We eat a lot of maida, we eat a lot of sugar, we eat a lot of salt. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने अपना इनटेक मैदे का, व्हाइट फ्लावर, व्हाइट शुगर और व्हाइट सॉल्ट का अगर आपने इनटेक कम कर दिया, ओके, मैं ये नहीं कहूंगा कि जीरो कर दो, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल. ओके, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें पॉसिबल नहीं है. हम बाहर जाएंगे, बट मिनिमाइज करो, टाइम से खाओ, सीजनल फूड खाओ. अभी अगर गुआवा आ रहा है तो गुआवा खाओ आप. अगर गुआवा खत्म हो गया मान लो आपके 1-1.5 महीने में, तो जो फ्रूट उस टाइम आता है, मैंगो, आप मैंगो खाओ आप. So जी. whatever vegetables, whatever fruits are in season, do eat them. That's why if you still look at, corners of India which are still organic. Why they are organic? Because वो seasonal खाना खाते हैं. वो अगर पत्ते हैं, जो साग जिसको अभी है तो बहुत अच्छा आ रहा है, तो वो उसको बनाएंगे, उसको खाएंगे. फूड इज मेडिसिन. तो आपको फूड को बिल्कुल निग्लेक्ट मत करो अपने लाइफस्टाइल से. बिकॉज हम इतने रश में होते हैं कि हम खाना छोड़ देते हैं, या कुछ भी जल्दी में एक सैंडविच खा लिया, एक बर्गर खा लिया, एक पिज्जा खा लिया. Sometimes it's fine. I'm not neglecting that, but you have to come down to understand, because health is wealth. आप कुछ भी कर लो, अगर Correct. आपका हेल्थ ही सही नहीं है तो आपका कुछ भी सही नहीं है. Right. Very true, sir. Very true. So, what is your favorite dish? So I actually I love my fish, by the way. So I love fish curry. और मुझे फिश बहुत पसंद है, तो मैं फिश भी खाता हूँ. मेरे को ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा पसंद है, बट मुझे फिश भी बहुत ज्यादा पसंद है. अजय शेफ, मुझे आप पूछोगे तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए. मैं जो भी बनाता हूँ मेरा वो फेवरेट हो जाता है. माय फेवरेट थिंग चेंजेस एवरी नाउ एंड देन. अभी आज मैंने वो बनाया था. अभी मैंने इनफैक्ट तिल संक्रांत के लिए मैंने कुछ रेसिपीज हिंदुस्तान टाइप्स के लिए कल ही शूट किया है. तो उसमें Wow. मैंने काली गाजर और कच्ची हल्दी का मुरब्बा बनाया है. ओके, Oh, that's उसको मैंने great. फिलो पेस्ट्री में डाल के इसको एक फ्राई कर दिया है. तो दैट इज माय डिश. अगर बहुत जल्दी वो मैं अपने पेज में शेयर करूंगा और आप लोग Sure, उसको sure. देखने. फिर मैंने पकवान Yes. बनाया है भुट्टे की खीस के साथ, पकवान. Ah, So again, that is the second dish, which was again very very nice, because पकवान is nice and crispy. और उसके ऊपर भुट्टे की खीस, थोड़ा जीरा, थोड़ी लाल मिर्च उसके ऊपर. तो थोड़ा स्पाइस भी चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा लोग मिर्ची खाना right. पसंद करेंगे अभी. तो ये 2 डिशेस मैंने उनके लिए अभी तुरंत ही शूट किया है, which again came out very very nice. तो इनफैक्ट मैंने एक जो सिंधी आलू होता है उसको तिल के साथ ही सिंधी आलू को मैंने सर्व किया है, और थोड़ा मठरा कुलचा Okay. भी उसके साथ एक कॉम्बिनेशन है. So these 3 dishes I have done. But if you ask me, I love my fish curry. I mean, anytime during the day, breakfast, lunch, dinner, supper, middle of the night, if I wake up, if you give me fish curry, I'll be very Oh very my happy. God. राइट, होता है ना, जैसे कि आप लोग काफी कुछ कुक करते रहते हैं, Correct. सो एक बहुत बहुत सारी चीजें कुक करने के बाद यू नीड समथिंग टू काम काम यू डाउन, Correct. इतनी सारी Correct. चीजें देखने के Correct. बाद. सो एक्चुअली आप फिश देखो, करी इज योर. हमारा जो फंक्शन होता है जनरली डोंट सी शेफ ईटिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम शेफ डोंट ईट, बिकॉज हम लोग इतना खाना बनाते, इतना अरोमा ऑलरेडी नाक में गया होता है ना, दैट वी आर लाइक क्वाइट डन. तो हमें कुछ भी जो भी, बट अगेन आई इंश्योर दैट आई ईट ऑन टाइम, एंड जो भी अच्छा चीज है तो वो मैं खा लूं. बट अगेन मतलब हमारे लिए तो मतलब हम लोग बनाते बनाते ही बहुत कुछ टेस्टिंग हो जाती है हमारी लाइफ में, बिकॉज आई टेस्ट एवरी मोमेंट ऑफ व्हाट आई व्हेन आई कुक. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कभी भी कुछ भी खाना बना रहे हो, आप एक चम्मच अपने पास रखो और टेस्ट करते रहो. यू नेवर नो व्हाट चेंज इज रिक्वायर्ड, और व्हाट
extra sauce or extra spice or extra seasoning can do to that dish. तो इसलिए right. मैं बहुत टेस्टिंग करता हूँ, मेरे पास 2-3 चम्मच हमेशा अपने साथ रेडी होता है, तो मैं हमेशा I keep eating, so finally it's okay. I mean, I just come back and I eat simple roti dal also, which is quite अच्छा nice. शेफ निशांत, I'm very curious about one thing. एक जैसे ingredients होते हैं, but if there is a difference in cooking and taste, Yeah. so how come this is possible? Like कि आप एक ही ingredients use करें वो और वही ingredients कोई और use करे, but Right. there will be a difference in taste. Right. So वो क्या एक reason रहता है? वो ये कि आप बनाना पहले तो क्या चाहते हैं, उस इंग्रेडिएंट को किस तरह से आपने बनाना है, आपने इंडियन बनाना है, उसी इंग्रेडिएंट को वो कोई दूसरी क्विजीन में बनाना है, या इंडिया में ही कोई नॉर्थ बना रहा है, कोई वेस्ट साउथ बना रहा है, तो वो एक अलग अलग है. बट सबसे इम्पोर्टेंट है टेक्सचर. एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, 5 सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ भी खाना अगर आपने बनाना है तो आपको स्वीट, सावर, एस्ट्रिंजेंट, बिटरनेस, स्पाइसी और सॉल्ट, ऑफ कोर्स सॉल्ट, ये अगर आपने ये कॉम्बिनेशन अगर आपने समझ लिया तो आप कोई भी खाना को अच्छा बना लोगे. अगर वाई चाट इज द मोस्ट फेमस डिश इन इंडिया, चाट, गोलगप्पे, जैसे अभी भी आपके मुंह में मेरे ख्याल से पानी आ रहा है जैसे मैं. Why it is Yes, so I good? can. I'm telling you, even I am salivating right now. Why? Because it has got correct mixture of senses which are brain registers. उसमें खटास है, मिठास है, स्ट्रिंजेंट है, बिटरनेस है, थोड़ी मिर्ची भी डाल देता है. जब अगर आप रोड साइड देखो तो कैसे करके बनाते हो लोग, थोड़ा जीरा डाल देगा, थोड़ा अरोमा के लिए थोड़ा नमक है, थोड़ा काला नमक डाल देते हैं कभी कभी लोग, और वो पापड़ी लास्ट में क्रश करके डाल देते हैं वो, बिकॉज वो कटक होना चाहिए. दैट इज व्हाई. So it is very सुन के ही I feel like having it. इनफैक्ट अभी मैंने यूएस क्रैनबेरी के लिए क्रैनबेरी चाट बना दिया. ओके, क्रैनबेरी के साथ, और मुझे लगा कि इतना अच्छा टेक्सचर आया उसमें क्रैनबेरी का. क्रैनबेरी व्हेन यू ईट इट गिव्स यू वेरी नाइस टैंजिनेस, ओके, व्हिच इज अगेन वन ऑफ द स्ट्रेसेस दैट आर ब्रेन रजिस्टर्स. तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, हमें जब भी कोई भी खाना बना हुआ उसमें इन सेंसेस का अगर आपने ध्यान रखा है ना, योर फूड इज गोना बी एब्सोल्युटली ऑलराइट. आई एम टेलिंग यू, द मोमेंट इट इज ओवर स्वीट, द मोमेंट देयर इज नो सॉल्ट, द मोमेंट इज परफेक्टली, जैसे गुई, जैसे आपने सब्जी बनाया, इतना हलवा बना दिया कि आपने खाया तो लग रहा है कि बिना दाग के वो आप गलौटी कबाब के जैसा फिसल गया पूरा. यू विल नॉट एंजॉय इट, राइट. यू वांट, अगर आपने आलू गोभी की सब्जी बनानी है, आप गोभी बोलोगे अच्छा, nicely cooked, it still should remain, that crunch is important, that when you bite, you put your knife, you still likes to just cut a bit, and then when you eat it, nice, so it has got all the flavors, which is very important. So ये flavors की कहानी है, स्टोरी है. चाहे आप कोई भी इंग्रेडिएंट ले लो, ये सेंसेस का ध्यान रखो, और फ्लेवर्स एंड टेक्सचर अगर आपने ध्यान रख लिया, आपका खाना सॉर्टेड है. राइट. जैसे कि आपने स्पाइसेस की बात की और आपने बाहर भी काम किया है, तो नॉर्मली सब लोगों का एक परसेप्शन रहा है कि इंडियन फूड इज वेरी स्पाइसी, That is very good question. So not है all ना. spices So are how spicy. difficult was to change that perception? So not all spices, I mean, it's a myth that Indian food is spicy, because Indian food, not all spices are spicy. Right. हमारी दालचीनी भी है, हमारी इलायची भी है. वी आर पार्ट ऑफ स्पाइस रूट. हम स्पाइस रूट के वैसे भी पार्ट है, जो कि पाकिस्तान से शुरू होकर नीचे आके साउथ ईस्ट एशिया की ओर चला जाता है. स्पाइसेस, यही स्पाइस रूट पूरी दुनिया का है. और यहाँ पर स्पाइसेस का नाम, अगर आप केरला जाओ, लैंड ऑफ स्पाइसेस, यू विल फाइंड क्लोव, यू विल फाइंड कोको, यू विल फाइंड ऑल स्पाइस, यू विल फाइंड स्टार एनीज, सब स्पाइस है. बट उनमें तो कोई स्पाइसी नहीं है. जिंजर भी स्पाइस है, जिंजर भी स्पाइसी कहाँ है? So I think it's a myth that Indian food is spicy. It is absolutely a wrong thing to say that. It is not only chilies, but we have abundant of spices which makes our food very, very flavorful. I think flavorful is the better word than saying it's spicy. Right. Correct. अच्छा, आपके घर में कौन खाना बनाता है?
you know? मैं मोस्टली तो मैं ही खाना बनाता हूँ. ओके. Okay. और उसके बाद जब भी टाइम मिलता है तो माय फैमिली मेक्स इट, बट आई Mm-hmm. मेक मोस्ट ऑफ द टाइम, आई ट्राई टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट. बट डूइंग आई लाइक टू डू इनोवेटिव डिशेस एक्चुअली. कुछ इनोवेशन, साथ Okay. साथ में इनोवेशन भी हो जाए, कुछ बनाओ भी और वो इंस्टाग्राम के लिए भी हो जाए. Oh, wow. And how effective, like how food में mood कितना reflect करता है? Like if I Oh say. yes, good question. तो मेरे हिसाब से Mm-hmm. you should never mix family with work, work with family. Mm-hmm. अगर आपने ये combination सीख लिया लाइफ में, तो again it is very very nice for anyone, because Mm-hmm. if you are at work, please don't think about family. If you are with family, don't think about work. This is Mm-hmm. how it should be, because otherwise very disturbing. It's very very. और अगर आप अच्छे मूड में हो, अगर आपने घर से अच्छे मूड से निकले, अच्छे मूड से अच्छा खाना बनता है. This is जी. 100% true. If you are not in good mood, I'm telling you, 99 out of 100 you will make good food if you are in good mood. Okay. Otherwise, if you are in bad mood, जितना भी आप अच्छा कर लो, कहीं ना कहीं आपका दिमाग वो फोकस नहीं रहेगा, तो आप अच्छा नहीं Mm-hmm. बनेगा आपका. So it is important, very very important, to be always fresh, always be in good mood, always very exciting, always excited. Right. Like you should be excited that इंटरेस्टिंग. अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, तो कुछ नहीं होगा Mm-hmm. लाइफ में. अगर आपने इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर, अगर आपने इंटरेस्ट नहीं है तो आपने कुछ नहीं होना. ये इम्पोर्टेंट है Right. कि आपको इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट और नॉलेज, इन सब चीजों. ओवरऑल इफ योर एटीट्यूड इज राइट, देन यू कैन मेक और ब्रेक द आइस. Mm-hmm. Correct. So mood बहुत मैटर करता है. बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा. I am telling you, अच्छा. there are a lot of cases where I have seen my seniors, not coming in good mood, and मैं तो आज तो लगी हमारी. Right. And not only mood, I think कहते हैं ना, एक चीज कहते हैं कि पहले खाना आंखों से खाया जाता है. Correct. You know, Absolutely. what you see, Absolutely. अगर वो आपको excite नहीं कर रहा है, Correct. मजा नहीं आ रहा है देखने में, तो खाने में भी मजा नहीं आएगा. So how One important is plating? very good question again. I think we eat from our eyes first. Okay. इसीलिए कोई भी आप खाना बनाओ, उसकी प्लेटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए. सुंदर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सुंदरता से उसका जो टोटल ऑरा है वो डिश का वही खत्म कर दिया, वो भी नहीं होना चाहिए. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, लोग कुछ भी डाल देते हैं, मतलब टू मेक इट ब्यूटीफुल. इट शुड नॉट बी द एवरीथिंग व्हाट यू पुट ऑन द प्लेट शुड बी एडिबल और शुड बी रेलेवेंट. जैसे आप बोलोगे कि निशांत, फिर केले का छिलका भी तो हम डालते हैं प्लेट के ऊपर, बट देयर इज अ रेलेवेंस, बिकॉज केले का छिलके में अगर आपने कुकिंग किया है, और केले के छिलके में अगर आपने उसके साथ एक मिनरल्स जो होते हैं केले के छिलके के, उसका जब उसके साथ जब फूड टच होता है, तो वो काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है. अगर आपने देखा कि साउथ में लोग हाथ से खाते हैं और केले के पत्ते के ऊपर खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्यों खाते हैं? हाथ से हमारे कनेक्ट है, उसमें जो केले के पत्ते में जो मिनरल्स है, वो जो फूड के साथ खाते हैं, दैट मेक्स इट मोर न्यूट्रिशियस, मोर नॉरिशिंग. So that is the reason that they eat it on the banana leaf. इनफैक्ट जो अगेन मैंने हिंदुस्तान टाइप्स की जो प्लेटिंग की है अभी, उसकी मैंने प्लेट ही नहीं यूज किया, मैंने केले के पत्ते के ऊपर ही कर दिया. सो बट देयर इज अ रेलेवेंस. तो वो इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप प्लेटिंग करें, क्लीन रहना चाहिए. लेस इज मोर. मैं हमेशा बोलता हूँ, आप कम हैंडल करो, आप कम चीजों से खाने को ज्यादा सुंदर बनाओ. कुछ थिएटरी करो, जैसे अगर आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, आपने खाना बनाया, तो आप उनके सामने कुछ चीज ग्रेट कर दो, गोंदोराज लेमन आपने स्क्वीज कर दिया कहीं पर, आपने कहीं पर आके थोड़ा सॉल्ट डाल दिया, कहीं ब्लैक पेपर आके क्रश कर दिया. सिंपल थिंग्स. Just that when you are talking to your people, when you have party at home, you just crush some, fresh pepper on your pasta, maybe example. तो वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस, बहुत ज्यादा अपीलिंग हो जाता है. और आज के अगेन बहुत इंस्टाग्रामेबल जमाना है. Everyone liking put up thing in their stories, in their page and all. So when you do theatric arrangement, then people will click on the food, and that is very very. But it should be all sensible. It should not be something which creates fiasco. आपने कटहल का छिलका नहीं डालना है प्लेट में, वो नहीं खाता. In fact, I remember once, like, in hotel,
देयर वाज अ गर्ल, शी वाज सिटिंग, वो खाना नहीं खाने दे रही थी सबको कि सबसे पहले हम क्लिक करते Oh हैं, yeah, सबसे पहले हम that's what. वीडियोस बनाते हैं। सो यस, यू आर राइट, No, आजकल इंस्टाग्राम में का it is जमाना all है। about social media. I mean, हम्म, social media has taken over, good or bad. या I mean, both sides of it. But whatever is the trend, we should go according to that trend. We should all. But again, your knowledge is always very very important when you are doing things to make it more interesting. अगर interesting बना सकते हैं अब, ऐसा कुछ problem नहीं है, लेकिन ये है कि राइट। ज्यादा मत करें, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो वो समझ में नहीं आता कि मैं चाट खा रहा हूँ, कि मैं पापड़ी खा रहा हूँ, कि मैं गोलगप्पे खा रहा हूँ, कि मैं भल्ले खा रहा हूँ। जी, इट शुड बी ऑल कम्युनिकेटेड वेरी वेरी राइट। सो कोई ऐसी कोई पेट पीव जो बोलते हैं ना कि आपको किचन में लगता हो कि आपको डिसोरिएंट करता हो, कोई ऐसी चीज, वेल। मैं समझा नहीं, कोई ऐसी चीज जो जो कोई ऐसी चीज जो आपको किचन में डिसोरिएंट करती हो, लाइक कि आप बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते कि ये नहीं होना चाहिए। आई यू थिंक मेरे मेरे हिसाब से मेरे किचन में मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एटीट्यूड, कि अगर राइट। आपने आपने नहीं आता है, वो आप क्लियर बोलो नहीं आता, मुझे नहीं आता है, मैं बोलता हूँ मुझे नहीं आता, सिंपल। ओके, सिखा दो, राइट। teach me. That's why I get along with Dr. Pushpeshwar very very well, because she is my guru. उनके सामने बोलता हूँ, सर मुझे कुछ नहीं आता, सिंपल है। तो सर मुझे बोलता है, यार राइट। आपको ये नहीं पता, तो आप ये बुक ले लो, ये पढ़ लो। So you get that positive vibe. The moment you start having an attitude where you say कि I know everything, then that doesn't यस। work. I think it's better to be humble. Okay, it's better to have to say that you know less. Okay, don't underestimate yourself, and at the same time you should be very very humble. You should be always curious to learn. और अगर राइट। इस तरह का फॉर्मेशन आपके अंदर है, दिस इज अ सर्विस इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है। वी हैव टू बी वेरी वेरी पोलाइट, वी एंड नेवर से नो। आई हेट पीपल व्हेन दे से नो। करेक्ट। Everything is possible. I am possible, right? Impossible is I am possible. So everything is राइट। possible in this world. God has made us human beings, thinking that we would do something wonderful. So that's वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको अपने अंदर कन्विक्शन, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो आप। और देखो कहाँ से कहाँ, हाउ द फूड ट्रेंड हैज चेंज ओवर past 10 राइट। years. If you look at the graph, it summarizes everything. राइट। तो सर आपने टीवी होस्टिंग भी की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? Yes, yes. So I have a channel at Tata Sky called as Spam Health, और उसमें ओके। मैं डॉक्टर्स के साथ मैं कोलैबोरेट करके मैं रेसिपीज बनाता हूँ। मेरे 90% रेसिपीज अकॉर्डिंग टू डायबिटिक लोग ओके। के लिए है, बिकॉज डायबिटीज is the worst thing right now. Every other ओके। person that you will meet is having diabetic disorders. तो यस। उनके लिए मैं डॉक्टर से मिला, डॉक्टर संजय कालरा जी ने मुझे काफी इंफॉर्मेशन दिया है। काफी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आशा कपूर, उनके साथ मैं काम किया। तो हम लोगों ने मिलके कुछ रेसिपीज जनरेट किया, उसको वो मेरे टीवी पे चैनल है, 510 इज माय Oh, चैनल। that's really great, sir. Please share your channel, and श्योर if श्योर, it's on YouTube, please share your डेफिनेटली आई डू, YouTube. Yeah, डेफिनेटली yeah, आई डू, please. डेफिनेटली आई So it will be great because जैसे कि आपने डायबिटिक वर्ड यूज किया, एंड डायबिटीज कहते हैं कि इट्स इन एवरीथिंग, डू। यस, जो कि कहा जाता है कि थोड़ी या ज्यादा शुगर इट्स देयर इन एवरी, चाहे वो वेजिटेबल हो, फ्रूट हो। सो ये इम्पोर्टेंट है कि यू कैन ईट एवरीथिंग। ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कुछ खा सकते हो, आप ऑल इन मॉडरेशन अगर आप खाते हो एक मात्रा में, जी। तो it is good. There is no problem. You can eat pasta also, you can eat rice also. और शुगर कम करना डायबिटीज में फायदेमंद नहीं है, कार्बोहाइड्रेट कम करना जी। है। आलू कम खाओ, आप ब्रेड कम खाओ, चावल थोड़ा कम खाओ, खाना सब है, जी। बट थोड़ा मॉडरेशन रखो। और अगर आपने फ्रूट्स खाने, थोड़े मैं टिप्स यहाँ पर दे देता हूँ। जी। अगर आपने फ्रूट्स खाने हैं, से आई लव मैंगोज, डोंट ईट मैंगोज इन डिनर, eat it at 4 o'clock so that you have enough time to digest that sugar. ओके। So any kind of fruit, also don't make juice out of it. Eat मतलब आप उसको काट के खाओ। आप उसका जूस बना के खाओगे तो उसके अंदर शुगर ज्यादा होता है। अगर आपने क्यूब्स में खाया तो क्यूब्स को आप कम भी खाओगे। आप क्या होगा, एक गिलास पी लोगे तो उसमें 4 मैंगो से एक गिलास आ गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल। आपको पता ही नहीं चलेगा आपने 4 मैंगो भी खा लिया। बट अगर आपको मैं क्यूब्स करके दूंगा, वो भी बड़े बड़े क्यूब्स दूंगा,
तो आप शायद 2 4 5 क्यूब्स खा के आपका मन भर जाएगा. तो इट इज जी. ऑल्सो व्हेन यू एज आई सेड कि आप जो भी शुगर वाले फॉर्म चीजें खा रहे हो वो आप स्नैक टाइम पे खाओ. ओके, नॉट आफ्टर डिनर. नॉर्मली लोग डिजर्ट आफ्टर डिनर खाते हैं. आप 4 बजे खा लो. आपने एक गुलाब जामुन खाना है, आप 4 बजे खा लो, कोई दिक्कत नहीं. और वो भी है कि वो इम्पोर्टेंट कि पास्ता और अपने फिश खा रहा है, फिश खा लो, कोई दिक्कत नहीं है. एवरीथिंग यू कैन ईट बट ओनली इन मॉडरेशन. ऑल्सो व्हेन आई सेड अबाउट ओके. रिफाइंड स्टार्च, रिफाइंड सॉल्ट एंड रिफाइंड शुगर, ये तीनों का कंट्रोल रखोगे आप तो आई एम श्योर यू विल बी फाइन. They say कि one should switch over to pink salt और यस, सेंधा नमक. आई थिंक सेंधा, मैं जब अपना प्रोग्राम कर रहा था उस टाइम मैं काफी घर में गया जहां पर नमक आता ही नहीं है. देयर इज नो नमक. they don't Okay. get salt in their house. So I tell you, a normal person, we should only eat 5 grams of salt. Okay. So in fact there are a lot of families where जिनसे मैं मिला, जैसे 6 लोग हैं तो 30 ग्राम सॉल्ट वो मेजर कर लेते हैं और उतना ही नमक खाते हैं दिन भर. There are a lot of families who don't even get salt in their house because because there are a lot of things which are natural salt. जैसे आप अगर पक्षल खा रहे हो, पालक खा रहे हो, कच्ची हल्दी खा रहे हो, अदरक खा रहे हो, विनेगर खा रहे हो, फिश खा रहे हो, एग खा रहे हो, इनके अंदर भगवान ने ऑटोमेटिक सॉल्ट डाल के भेजा हुआ है फॉर एग्जाम्पल. जी. तो अगर आपने इन चीज को खा लिया तो आपके जो बॉडी में नमक का क्वांटिटी है, कहीं ना कहीं नमक की मात्रा पूरी हो जाती है. ओके. तो ये ऐसा नहीं है कि आपको नमक खाना ही है. जैसे आप चाय, आप देखो बहुत लोगों ने बिना शुगर के चाय पीना डेवलप कर लिया है. राइट. और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो whoever is watching, don't add salt from the top. अगर सॉल्ट कम है you should be happy that नमक कम है. बहुत लोगों को देखा है नमक ऊपर से उन्होंने वो डाल के पूरा, that is very bad by the way. Immediately आपका ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है. So never put salt on top even if it is less salt. So do this, practice these small things in your life. I think I'm sure you'll be fine. जैसे आपने सैलेड है, अभी गाजर आ रहा है, मूली आ रहा है, ये सब चीज आप लेके सैलेड बना के खा लो. आपने विनेगर ड्रेसिंग बना के खा लो. आप दही खा लो. फर्मेंटेड थिंग इज वेरी गुड फॉर आवर गट, फॉर आवर बॉडी. तभी आप, एक ड्रिंक बहुत पॉपुलर हो गया है, इसको बोलते हैं कम्बुचा. ओके. जैसे हमारे राजस्थान में जो कांजी बनती है, कांजी, अभी काली गाजर आ गया है, तो आप कांजी बना कर रख लो. जो भी फर्मेंटेड चीज होता है हमारे गट के लिए बहुत फायदेमंद है. अगर आपका गट हेल्दी है तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी, ये फॉर श्योर. तभी आपने कोई भी फर्मेंटेड चीज आप खाओ, वो बॉडी के लिए बहुत प्रोबायोटिक है. ये सब चीज बहुत, इट इज वेरी गुड फॉर आवर बॉडी. तो आप कांजी बना लो, आप कम्बुचा पी सकते हो. कम्बुचा में चाय को फर्मेंट करके कम्बुचा बनता है. So people are aware, but just that we need to understand that what is the right way to eat. It is very important to eat mindful, shop artisanal, and also spread awareness. हमने जो बात कर रहे हैं उसमें अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है. लोगों को बताना ताकि वो भी हमारे साथ साथ हेल्दी रहे. Correct. It's really quite a informative thing because आजकल वैसे भी ये सब चीजें आ रही हैं and it is easy to create. Yes. So it's really good that we have connected on a correct timing. Thank you very much. It's very nice of you, lovely. Very very nice. अच्छा, Chef Nishant, what was the story behind Street Stories Bangalore? Yeah. So Street Stories Bangalore is a vegetarian restaurant और उसको अक्षय लूथरा owns that property. और उनका एक रेस्टोरेंट था गुड़गांव में, लैम्प करके, और वो अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से बंद हो गया. उसके बाद वो रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते थे, वो बैंगलोर से है. तो वो बैठ के उन्होंने बोला कि क्या कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी चीज जब आप स्टार्ट करते हो एंटरप्रेन्योर जर्नी में, आपको कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा. अगर आप कॉन्सेप्चुअल वर्क में देखो तो थाईलैंड में जो रेस्टोरेंट है बड़े हिट हो रहा है, बिकॉज वो हर एक रेस्टोरेंट का अपना अपना कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग. उसके बाद टोटल चीज शुरू होता है कि आपने पहले कॉन्सेप्ट बनाना है. तो हम लोग बैठे हुए थे, तो फिर अक्षय ने बोला कि यार, बिकॉज आई ऑल्सो लव फिश, अक्षय ऑल्सो लाइक हिज hamburgers and everything. So but he said that let's try vegetarian. It was more of a trial character कि निशांत वेजिटेरियन कर देते हैं. वेजिटेरियन नासी गोरेंग भी बनाते हैं, कटहल की निहारी भी बना देते हैं. we कटहल रोगन जोश बना दिया. So
we all thought that let's convert all the non-vegetarian dishes into vegetarian. So Okay. इसकी वजह से ये completely purely vegetarian restaurant है, and they are the number one restaurant right now, and it's doing so well. I can't even tell you. We won the best vegetarian restaurant by Times Food Night for the last 3 or 4 years in consecutively. So it is absolutely brilliant. But इसमें बहुत बार डांट भी खानी पड़ती है. इन पर अभी कटहल की निहारी मैंने बना के ट्वीट कर दिया. मृणाल पांडे जी ने बोला कि कटहल की निहारी जो बनाएगा वो नर्क पे जाएगा, like that. But you know people, that people are very but might be but might be I think trolling तो एक वो part हो गया, part and parcel. नहीं, बट आप देखो ना, अगर आपने वेजिटेरियन करना ही है तो फिर वेजिटेरियन बिरयानी तो होता ही नहीं था ना. वेजिटेरियन बिरयानी हुआ ऐसे नहीं होता था. Right. पुलाव बना. Pilav, हाँ, right. Pilav was there, Correct. but vegetable biryani, Right. there was no one. It was just Right. that, vegetarians thought that how do they eat rice and vegetables. They called it biryani. फिर हमने उसमें सारे बिरयानी के मसाले डाल दिए, प्याज, दही, गरम मसाला, सब कुछ डाल दिया, वो वेजिटेबल बिरयानी बन गया. अदरवाइज वेजिटेबल बिरयानी कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया. लेकिन अभी कितना ज्यादा वेजिटेबल बिरयानी के प्रति अवेयरनेस है. लोग मिलियंस छाप रहे हैं उसके नाम पे. Correct. And you have won Iron Chef Challenge also. Yes. Yeah. So how difficult was that? It was very difficult. It was, nothing comes easy, in this world, but it was very, very difficult. So this is a restaurant that I consult in Bangkok called as Indus, जो already Michelin plate में है और Michelin एक honor होता है. और जब Indus को बोला गया कि the reigning Iron Chef, he said that this time Indus would be called. So Sid Sehgal owns that that property in Bangkok. So he called and he said that Nishant, let's be part of the Irish Chef, but I'm calling you to win. ये उसने बोला Sid ने ये नहीं बोला कि आओ participate कर लो, हार और जीत तो होते रहता लाइफ में. जिससे आना है जीत के ही जाना है. I was like, ठीक है, okay. So I didn't think, as I said, I never say no to anything. So we went and we participated. So the opponent was very, very good. He was a 3 Michelin star chef. So उसने जापानीज खाना बनाया 6 डिशेस 1 घंटे में. मैं, अमित और एक और शेफ था. हम लोग, शेफ अमित, मैं और एक और शेफ, हम तीनों ने मिलके इंडियन खाना 6 डिशेस बनाए. और हम लोग, and of course, as I said, I'm Indian, so I would only, promote Indian cuisine. तो वो 2 या 3 मार्क्स से हम लोग 2018 में ये हमने अवार्ड जीता. It was very satisfying, very, very nice, and I always talk about it whenever I go. But it is not easy. It was a real time challenge, but not TV show. वो बिल्कुल real time हो गया था. घड़ी चल रहा है. 60 minutes to 50 minutes to go, 45 minutes to go. Now time up, go back, and then the real tasters, the best people from Thailand, they were tasting our food, and somehow we won it. So it was very, very satisfying. Wow, that was really amazing. अच्छा, जहाँ रेस्टोरेंट की बात होती है, नॉर्मली अगर 2 रेस्टोरेंट हैं एंड एक में बहुत सारा मेन्यू है एंड एक में सिर्फ 2 ही चीज हैं, बट दे आर एबल टू केटर वेल, सो आप उसमें से किसको सेलेक्ट करें कि जिसमें मेन्यू बहुत लंबा है, मेन्यू कार्ड, या जस्ट 2 dishes but they are? So I think 4 days I'll go to this restaurant जिसमें 2 ही डिश है. 2 दिन मैं यहाँ जाऊंगा, 4 दिन वहाँ जाऊंगा. I think I would put it in that order. I would go in both of the places, but I would go more towards the specialty restaurant जो 2 ही डिश बना रहा हो और परफेक्शन से बना रहा हो, और वो जाके कुछ सीखने को भी मिल जाए. और यहाँ भी जाऊंगा बिकॉज यहाँ वैरायटी होगा, देखने को मिलेगा क्या क्या हो रहा है. राइट. अच्छा, वन मोर थिंग शेफ, जैसे कि हम लोग नॉर्मली हाउस होल्ड में देखते हैं, लेडीज आर देयर इन द किचन, एंड सरप्राइजिंगली और अनसरप्राइजिंगली हमारे यहाँ आज भी 2023 में भी women chef are less है, but बहुत कम है. So what is your say on that? Yeah, I think very, very fair question. मैं तो जहाँ भी जाता हूँ तो I always, whoever is interested, I always tell women to come forward. In fact, you can see Chef Garima Arora is now the judge at Master Chef India. It is improving. थोड़ा सा पीछे रहती है. मैं हमेशा ये बोलता हूँ आप हमारे साथ चलो. In fact, you should march ahead.
इनफैक्ट अभी तो सारे चीजों में विमेन ही आगे है, सारी आप स्कोर सारे एग्जाम्स के देख लो तो वो सब आगे होती है. तो इट इज गेटिंग बेटर एंड आई थिंक वी ऑल शुड एडवोकेट एंड वी ऑल शुड give enough opportunities for them to come forward. But you can see Pooja Dhingra, you can see Chef Garima Arora, you can see Chef Anahita Dhondi, you can see, lot of Michelin star chefs are all doing absolutely phenomenal job. We are all very proud of them. तो बड़े अच्छे अच्छे शेफ्स इंडिया से भी निकल के आ रहे हैं. बट ये बहुत अपॉर्चुनिटी है कि मतलब आप विमेन इस करियर को चूज करें और इसमें काफी सारा चीज है जो कि बहुत अच्छा है. Right. Or might be, it's very time consuming, definitely, and it's very challenging. What is not challenging is everything is challenging. That's true. Whatever That's you do, true. it looks very complicated. It's a service. Sometimes it's a thankless job. You do so much of hard work. Also, यहाँ पर एरर नहीं है. एरर का बहुत कम चांसेस होता है. आपको आपने अच्छा नहीं बनाया, आप 1000 बार अच्छी चीजें बना दो, एक बार गलत चीज बनाओगे तो अच्छा नहीं है. एंड इंडिया में क्रिटिक्स बहुत ज्यादा है. इंडिया में एवरीवन thinks that they are Chef Sanjeev Kapoor, so they all critic whether the food is good or bad. So yeah, it's nice. It's nice to interact with them and then make them friends and then take this forward. It's really great to बहुत कुछ जानने को है, but time to wrap up because time थोड़ा सा कम पड़ जाता है हम लोगों को. It's really amazing talking to you. But जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी. कोई ऐसा weirdest इंसिडेंट या ऐसी weirdest experience जहाँ पे आपको सडनली आप कुछ ऐसे उसमें हैं और आपको कोई पूछे कि एक रेसिपी बता दीजिए या एक कुकिंग टिप दे दीजिए. अच्छा, कुकिंग टिप का यही है कि जब आप कुछ एक नहीं, मैं दो देना चाहूंगा कि अगर आप आपने घर पे बनाना तो आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए राइस कुकर में. अगर आपने राइस बनाना है और राइस कुकर के अंदर आप कुछ भी चीज पका सकते हैं, उसके अंदर आप स्पाइसेस डालेंगे तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर्स आएगा. कुकर का यूज जरूर करें, प्रेशर कुकर का, बिकॉज आजकल में टाइम का प्रॉब्लम बहुत लोग का है. और जैसा मैंने पहले बताया कि थोड़ा सा रिफाइंड स्टार्च, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट को कम खाएं. और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें हेल्दी रहना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सीजनल खाएं. सीजनल खाना भी टेस्टी होता है, हेल्दी खाना भी टेस्टी होता है. ऐसा कुछ नहीं है कि बर्गर पिज्जा ही अनहेल्दी है. और फ्राइंग इज नॉट अनहेल्दी. लोग बोलते हैं ना कि यार फ्राइड फूड नहीं खाना है. दैट इज अ रॉन्ग थिंग. आपने ऑयल लिया है, ऑयल 3 बार आप ऑयल में फ्राई कर सकते हो बिफोर इट टर्न्स कार्सिनोजेनिक. तो फ्राइड फूड इज नॉट अनहेल्दी एब्सोल्युटली इफ इट इज डन राइट. So we have to keep it simple in our life. Don't complicate too much. आप अच्छा खाओ और अच्छा और थोड़ा सा हल्का सा व्यायाम कर लो. Just do little bit of yoga and then I think you'll be fine. Yeah. बस one last question. जो लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, जो इसे एज ए प्रोफेशनली करियर लेना चाहते हैं, तो what advice would you like to give to them? I said it before, attitude सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज. अगर आपका एटीट्यूड सही है, ठीक है जी, उसके नीचे आता है हार्ड वर्किंग हो, नॉलेजेबल हो, टीम वर्क हो, कमिटमेंट हो. ये सब चीज के नीचे अगर आपका एटीट्यूड सही है, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड से रखते हो, सीखने की क्षमता रखते हो, धैर्य भी आपके अंदर. ये नहीं कि आप आज सोच रहे हो कि आज आप पास किए आपको 2 साल के अंदर ही 6 फिगर सैलरी हो जाएगी. ऐसा नहीं है. ओके, यू हैव टू लिटरली गो थ्रू. आई कांट डिनाई 1% ऑफ देम बिकॉज those are lucky draw holders. Okay, but majority में यही है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए. इनफैक्ट जब आप आईएचएम भी करो तो 4 years का आईएचएम है, आप 2 साल को एक्सटेंड कर दो अपने लाइफ में एज एन आईएचएम. लर्न another 2 years thinking that you are still in college and you go to the industry and then go with a frame of mind that you are still learning. Okay, to brush up your skills का सबसे ज्यादा यहाँ पर जितना आप बात करते हो, बात का कम लॉजिक है हमारी इंडस्ट्री में. बट स्किल्स अगर आपको आते हैं, आपको अच्छा तंदूर है, आपका तंदूर इज ए ब्यूटीफुल इक्विपमेंट इन आवर इंडियन किचन जिसका टेम्परेचर करीबन 500 डिग्री होता है. तो आप अगर तंदूर आपने मास्टरी कर लिया, एब्सोल्युटली अमेजिंग. आपने अगर डिजर्ट जो मिठाई है इंडिया का
वो अगर आपने मास्टरी कर ली, not only gulab jamun or rasmalai, but other sweets also which are from different part of India, you are sorted. You will get amazing opportunity in life कि इतना opportunity आएगा कि आप reject करना शुरू कर दो. राइट. एक लास्ट चीज, जैसे कि मिठाई से मुझे याद आया, व्हाट वाज टोक्यो मिठाई वाला? So yeah, so Tokyo Mitai Wala was an interim project in Tokyo where Mr. Raji Sandar, he wanted to set up a kiosk basically. Again, I think that Indian sweets are little underrated, थोड़ा underrated है. उतना उनको Indian sweets को elevation नहीं मिला है. Finally लोग अभी तो dessert भी बहुत कम खा रहे हैं because sweets के वजह से sugar कम खाना चाहते हैं. तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं एक हम वहाँ टोक्यो में एक कियोस्क खोले, जैसे सीआर पार्क में यहाँ पर आप छोटी सी मिठाई की दुकान, तो वैसा खोला. It's amazing. I mean, the kind of response now. There are 2 locations, one in Tokyo, another one in Toronto. So it's doing very, very well. That's really great. And it's really great. I'm coming with 2 new projects in Australia and then in Spain. So I'll keep you guys posted on that. Yeah, definitely, and we are going to catch up you again. Sure, definitely. For that also. It's yes. really great talking to you. टाइम थोड़ा कम पड़ गया. आई थिंक हम लोगों ने काफी बातें की एंड पता ही नहीं चला टाइम का. इट वाज रियली अमेजिंग एंड स्पेशली योर रेसिपीज. आई एम गोइंग टू गो. प्लीज सेंड मी द लिंक एंड डेफिनेटली आई विल पोस्ट ऑन माय स्टोरीज and my this thing. So definitely anyone interested to work with me, please, you can DM and you can write to me. I would I would ensure that I give the opportunity. Yes, of course. Thank you so very much, and it's really great to have you here. Thank you. My pleasure. And my pleasure. God bless you. Happy Makar Sankranti. You too. And happy Lohri to you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye bye. And stay tuned for next update. Thank you.